السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے سنی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خط لکھ دیا ہے۔ سرپلس چینی کو فوری برآمد کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ چینی برآمد نہ ہونے کی صورت میں کسان نئی فصل کی کاشت کے حوالے سے پریشان ہے۔ حکومت فوری طور پر 5,85,000 ٹن سرپلس چینی برآمد کی اجازت دے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خط لکھ دیے ہیں۔ سرپلس چینی کو فوری برآمد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ چینی برآمد نہ ہونے کی صورت میں کسان نئی فصل کی کاشت کے حوالے سے پریشان ہے۔ حکومت فوری طور پر 5,85,000 ٹن سرپلس چینی برآمد کرنے کی اجازت دے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حبس ٹوٹا خدا خدا کر کے شہر میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، ڈیوس روڈ، مال روڈ اور ریلوے اسٹیشن کے طرف خوب بادل برسے۔ فاروق آباد، شاہدرہ، مغل پورہ، شادی پورہ، تاج پورہ اور دیگر علاقوں میں بھی رم جھم اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی عارضی طور پر متاثر رہی۔ فیڈر اسٹپ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا سامنا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اگست تک وقفے سے مزید بادل برسنے کا امکان ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دوپہر کے وقت کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ بارش سے گرمی اور حبس کا خاتمہ ہو گیا۔ موسم خوشگوار ہو جانے سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بارش ہوئی۔ بارش کے بعد نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، جسے واسع عملہ فوری کلیئر کرتا ہوا دکھائی دیا۔ بارش کے باعث لیسکو کے 35 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر کے اور تکنیکی خرابیوں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی گھنٹوں بند رہی، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور کی تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں، لٹکتی تاروں، کچے مکانات اور بوسیدہ عمارتوں کے دور رہنے اور بچوں کو نشیبی علاقوں میں جانے سے روکنے کی اپیل کی۔ کیمرہ مین بابر کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ کا اپنی چھت اپنا گھر کے تحت بوسیدہ چھتوں کے مرمت کے لیے قرضے کے اعلان کا معاملہ مونسون کا آغاز ہوئے 20 روز سے زائد گزر چکے ہیں۔ متاثرہ شہری امدادی قرضوں کے منتظر ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پالیسی مکمل ہے۔ قرضوں کی تقسیم کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ مانسون بارشوں کے دوران کمزور اور خستال چھتوں سے لاحق خطرات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کے بعد شہریوں نے آن لائن درخواستیں جمع کروانا شروع کر دی ہیں، تاہم قرضوں کی عملی فراہمی کا مرحلہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ مانسون کا آغاز ہوئے 20 روز سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب تک کسی بھی درخواست گزار کو مرمت کے لیے قرض جاری نہیں کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے اسکیم پر عمل درآمد کی ذمہ داری محکمہ ہاؤسنگ اور پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو سونپی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ قرضوں کی پالیسی مکمل کر لی گئی ہے۔ آن لائن پورٹل پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور قرضوں کی تقسیم کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ متوقع بارشوں کے باعث مشرقی دریاؤں اور ان سے ملحقہ نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لاہور، راولپنڈی، کوچاوانا، کچا، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح نارمل ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں بھی پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور جاپا نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے انعام حیدر ملک کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت این ڈی ایم اے تمام صوبوں کے ساتھ سیلابی صورتحال کے حوالے سے مکمل رابطے میں ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے
PDMA रेस्क्यू और दीगर इदारों का रद्द अमल काबिल तारीफ है। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने PDMA हेड ऑफिस का दौरा किया। चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राय डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक और DG PDMA सैफ अनवर ने चेयरमैन NDMA का इस्तकबाल किया। इनाम हैदर मलिक का मानसून और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड का तलबा की सहूलत के लिए एक अहम डिजिटल इक़दाम, रवायती हार्ड कॉपी की बजाय डिजिटल रिज़ल्ट कार्ड जारी करने का फ़ैसला किया गया है। तलबा को रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने नताइज के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब एक अहम कदम उठा लिया है। बोर्ड की तारीख में पहली बार तलबा को हार्ड कॉपी के बजाय डिजिटल रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा। नई सहूलत के तहत सालाना इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के अगले ही रोज तलबा अपना रिजल्ट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे वक्त, अखराजात और बोर्ड ऑफिस के गैर जरूरी चक्करों से निजात मिलेगी। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर बदरुल इस्लाम का कहना है कि इदारा इम्तिहानी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग दे रहा है। तलबा की रहनुमाई और मालूमात की फौरी फराहमी के लिए बोर्ड का अपना चैट बोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। रिजल्ट कार्ड जो हैं वो इनिशिएट कर रहे हैं, उनको डिज़ाइन हमने कर लिया हुआ है और ये रिजल्ट्स जो हैं ये PDF फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्म में स्टूडेंट्स को डिलीवर किए जाएंगे। और जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह से पहले हार्ड फॉर्म में रिजल्ट्स डिलीवर होते थे, अब ये रिजल्ट्स जो हैं ये PDF फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और स्टूडेंट्स उन्हें डाउनलोड कर सकेंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स के थ्रू। और इसी तरह से ये रिजल्ट्स जो हैं ये हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करेंगे फ़ौरी तौर पे जितने भी हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ से इन्हें सॉफ्ट फॉर्म में कलेक्ट कर सकेंगे। उनका कहना था कि डिजिटल रिजल्ट कार्ड और चैट बोर्ड जैसे इकदाम का मकसद तलबा को आसान, तेज रफ्तार और शफाफ सहूलियात फराहम करना है। लाहौर तालीमी बोर्ड के इस इकदाम को इम्तिहानी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा है कि तमाम स्कूल और कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम PEF और PSRP स्कूलों की वाजिबुल अदायगियाँ आइंदा 10 रोज़ के अंदर क्लियर कर दी जाएंगी। राना सिकंदर हयात का कहना है कि हुकूमत STI और CTI प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का तकाबली जायज़ा लेगी, मुस्तकबिल की पॉलिसी बेहतर अंदाज में मुरतब की जा सके। अब तक 90% टीचर्स इंटर्न्स की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही है, जिसकी बुनियाद पर इंटर्नशिप प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हज़रत अली हिजवेरी के सालाना उर्स और चेलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने लाहौर में सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहर भर में AI बेस्ड स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम के ज़रिए निगरानी का अमल मज़ीद मौसर बना दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हाई अलर्ट। शहर के हसास मुकामात, दरबार हज़रत दाता गंज बख्श, जुलूसों के रास्तों और दीगर अहम मुकामात पर जदीद AI बेस्ड स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुल्हिका इलाकों में जदीद कैमरों की मदद से हर सरगर्मी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मसनूई जहानत पर मुबनी सिस्टम के जरिए मशकूक अफराद और गैर मामूली सरगर्मियों की बर निशानदेही को यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहमी तावन से ज़ायरीन और शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल तावन करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर में 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम आज खुद 4650 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला कम सप्लाई में 1125 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गंदम महंगी होने से लाहौर में 10 किलो थैले की सप्लाई 1 लाख बोरी कम है। लाहौर में योमिया 10 किलो आटे की 2,20,000 डिमांड है। 15 किलो थैला 2150 रुपए में आज खुद फरोख्त होने लगा है।
सुबह भर में आटा महंगा होने से तनूर पर रोटी 15 से 25 रुपए तक फरोख्त हो रही है। रायविड, मुल्तान रोड, जौहर टाउन, फैसल टाउन, वापना टाउन, वरिंशिया, इकबाल टाउन, मॉल टाउन, गार्डन टाउन में रोटी 22 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। अनारकली, मॉल रोड, इस्लामपुरा, संतनगर, बागबानपुरा और शाहतरा में भी रोटी 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। जिले हुकाम के मुताबिक रोटी 14 रुपए में हर सूरत फरोख्त होगी। महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। खुद साख्ता महंगाई अवाम के लिए मुसीबत बन गई है। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स फरोख्त किए जाने लगी हैं। अशिया ज़रूरिया के सरकारी दाम इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत सरकारी रेट लिस्टों के बरअक्स फरोख्त की जाने लगी। सब्ज मंडियों, पोश इलाकों और गली मोहल्लों में अशिया के मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। परचून में टमाटर 350, प्याज 140, लहसुन चाइना 400 रुपए फी किलो है। अदरक थाईलैंड 450, लीमू देसी और खीरा 260 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 420 और मेथी 300 रुपए फी किलो बेची जा रही है। सेब दर्जा अव्वल 450, आम चौंसा 420, आड़ू 300 रुपए फी किलो हैं। आलू बुखारा 500, अमरूद 300 और पपीता 400 रुपए फी किलो मिल रहा है। केले दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं कोई चीज भी सस्ती नहीं रही, रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत महंगा है, गरीब आदमी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। रेट लिस्ट ही नहीं लगाई है, 200 से नीचे कोई सब्जी भी नहीं है। बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा ही करना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ। रेल लिस्ट जारी होती है, आप मुझे रेल लिस्ट पे कुछ भी लेके दिखा दें। टमाटर लेके दिखा दें रेल लिस्ट पे, टमाटर रेल लिस्ट पे 200 है और इनके पास 400 रुपये है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसके मुताबिक नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, मंडी में रेट तेज़ है, कोई मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जी तो गरीब, कोई सब्जी 200 से नीचे नहीं है, गरीब के पूंछ से दूर हुई है, हर चीज़ दूर हुई है। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 21 रुपए कमी से 454 रुपए मुकर्रर की गई है। साफी ब्रायलर गोश्त 520 रुपए फी किलो मिल रहा है। फार्मी अंडे 268 रुपए फी दर्जन हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में अशिया खरोनोश की नई कीमतों का तयन। दाल मूंग छिलके वाली 65, बेसन 20, दाल चना 10 रुपये फ़ी किलो सस्ती, दूध 170 रुपये फ़ी लीटर, बीफ 1600 रुपये फ़ी किलो और रोटी 1400 रुपये की फ़रोख्त होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अशिया खरोनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाल मूंग छिलके वाली की कीमत 345 से कम होकर 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। बेसन की कीमत 230 से कम होकर 210 रुपये हो गई। इसी तरह दूध 170 रुपये फ़ी लीटर और दाल माश छिलके वाली 360 रुपये फ़ी किलो बेची जाएगी। मटन 1600 और बीफ 800 रुपये फ़ी किलो और तंदूरी रोटी का रेट 14 रुपये बरकरार रहेगा। DC लाहौर अली इजाज़ का कहना है कि नई कीमतों से ज़ायद वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, LPG माफिया के खुलेआम लूटमार जारी है। उगरा ने भी गैस 13 रुपये फ़ी किलो मज़ीद महंगी के लिए आवाम की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में कहीं भी सरकारी रेट पर LPG मैसर नहीं है। गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से LPG माफिया खुशहाल, अवाम शदीद परेशानी का शिकार। ओगरा ने भी गैस 13 रुपये फ़ी किलो मजीद महंगी करके शहरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। LPG की रवा माह के लिए नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। शहर भर में कहीं भी LPG ओगरा की नई कीमत पर भी दस्तयाब नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में सिलेंडर गैस 380 से 430 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। ओगरा और दीगर इंतजामी इदारे LPG की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। सारिफीन का कहना है कि घरों में गैस नहीं आती, इसलिए LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं, कोई 400 बेच रहा है, कोई 450 बेच रहा है और सवारी कहती है पैसे किस लिए, हमने बढ़ाई गैस। वो एक ही जवाब देते हैं, गैस बढ़ाई तो हमने बढ़ाई है, वो तो किराया नहीं देते। हमारी तो इतनी परेशानी है कि हम अपने घर का खर्चा नहीं चला सक रहे। कोई 400 रुपये दे रहा है, कोई 450 दे रहा है, कोई 420 दे रहा है। इस वजह से सवारी भी किराए, जब सवारी से किराया मांगते हैं सवारी किराया नहीं खर्च रही। शहरियों का कहना है कि LPG की कीमतें मुसलसल बढ़ने के बायस घर में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत LPG माफिया के गिर्द घेरा तंग करे। कैमरामैन फैसल खान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। मरकजी किराना एसोसिएशन का इजलास, ताजरों ने मसाइल उजागर किए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज। DC की किराना रेट्स लिस्ट का तरीकाकार तब्दील करने का मुतालिबा किया गया। मरकजी किराना एसोसिएशन का इजलास एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक गुलाम अब्बास की रहायशगाह पर मुनक़िद हुआ। सदर किराना एसोसिएशन हाफिज़ आरिफ गुज्जर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मिर्ज़ा जावेद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शुरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों पर शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि कारोबारी अखराजात में नुमाया इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी की जाने वाली किराना रेट लिस्ट के तरीक़ाकार पर नज़रसानी का मुतालिबा है। इजलास में चौधरी मोहम्मद असलम, शेख रियाज, शेख अजीम, साबिर हुसैन और राना वसीम समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन ने सूबा भर में आटे की फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आवाम को मुकर्रर निर्खों पर मयारी आटे की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने का दावा किया गया है। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज़ के मुताबिक हुकूमत फ्लोर मिल्स को 40 किलोग्राम गंदम 2800 रुपये में फ़राहम कर रही है। 10 किलो आटे का थैला 1100 और 20 किलो का थैला 2200 रुपये की मुकर्रर कीमत पर दस्तयाब है। तर्जुमान के मुताबिक रोज़ाना 5000 मेट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को जारी की जा रही हैं। लाहौर डिवीजन को आटे के सबसे ज़्यादा 2,80,903 थैले फराहम किए गए। इसी तरह फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान डिवीजन्स को भी वाफर मिकदार में आटे के थैले फराहम किए गए। महकमा फूड सेफ्टी का कहना है कि आटे की सप्लाई और मॉनिटरिंग का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया है। किसी भी ज़िला में किल्लत की सूरत में फौरी फराहमी यकीनी बनाई जा रही। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा है कि हर सरमायाकार को खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है। सूबे में तमाम नए कारोबार और सनती शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ्द की अहम मुलाकात। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने वज़ीर आला पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग दी। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से जदीद ग्रीन इकोनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन इकोनॉमिक जोन की तजवीज़ पर अमाद की अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराती पैकेज का ऐलान। ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से 18,000 से ज्यादा अफराद को जदीद रोजगार मिलने और सालाना 5.6 अरब रुपए आमदन मतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर सरमायाकार को खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है। पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन और तमाम NOCs की फौरी फराहमी का यकजा निज़ाम कायम है। पंजाब को जदीद तरीन ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि पंजाब में तमाम इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से पाक मुकम्मल, महफूज और पुरअमन तिजारती माहौल फराहम किया जा रहा है।